academia. Professor UC Vasishtha. Professor UC Vasishtha started his career from Department of Education uh, from Devi Ahilyabai University, Indore. Sir has done his academic, did his MSc Botany, MA Philosophy, MEd, MPhil, PhD in Education. He was head and dean. His area of specialization is philosophy today of science and teaching of science and technology. He has associated and he has associated many positions of in academics. That is, he was the member of EC and AC, director of Center of Vivekananda Studies, director of the Center for Gandhian Thoughts, member of various academic bodies like member of Board of Studies of IGNOU, Indira Gandhi National Open University. He his expertise has been utilized by the various, I will say the universities like Delhi University, University of Jammu and Kashmir, MD University Rohtak, University of Mumbai, Vanasthali Vidyapeeth, Rajasthan, Goa University, MS University Baroda, and of course HRDC MU Aligarh. He is the member of NAC, NCT, UDC, UPSC, ICSR, and NUPA. These are the few names which I'm able to mention over here. He has successfully supervised more than 25 PhDs. Sir has attended and delivered his lecture in various seminars and conferences, that is national international level. He awarded Shiksha Shri Samman from Uttar Pradesh government. Apart from these, one unique contribution in academia, which I would like to mention before you, my dear participant, that when Sir have joined the Lucknow University as a professor, he just experimented one thing, that he divided his group of MEd in two parts. मैं इसलिए ये बात यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि हम लोग सब लोग फैकल्टी मेंबर हैं और वी हैव टू लर्न आवर आई विल से द सीनियर्स हाउ दे एक्सपेरिमेंटेड इन देयर क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. तो सर ने जो एमएड की क्लास को दो ग्रुप में डिवाइड किया और उस दो ग्रुप को इन्होंने एक ग्रुप को सेल्फ लर्निंग या सेल्फ स्टडी के जरिए पढ़ने को कहा, दूसरे ग्रुप को दे आर अटेंडिंग प्रॉपरली क्लासेस. एंड यू विल सरप्राइज टू नो they all have qualified NET and GRF during his professorship and in his class. So these are the some very little experiment which we can do in our classroom. I'm not going in detail because sir is a versatile speaker. I don't want to be steady between you and Professor Vasishtha sir. Without any delay, I would like to invite sir, now the mic over to you to speak on the today's topic, that is an overview of IKS, that is Indian Knowledge System. Now the mic over to you, sir. Thank you, Dr. Aftab Ahmed ji. I feel honored and elated to be associated with a university like AMU. For many reasons, AMU is dear to my heart. One basic being that it is very near to my home district, Bulandshahr. Secondly, in fact, I never got a third-rate thesis from AMU. Never. All were good, wonderful theses, whatever I got. Dozens of course. More than that, the academic kind of seriousness which I received from AMU is simply worth mentioning. Okay. Friends, I'll be speaking, as I said, an overview of Indian knowledge system and integrated this knowledge into teacher education curriculum. First, let me settle 2-3 things. First, I have been told that this is a large group from all over India. Therefore, the medium of instruction can be mixed. However, is there someone who just cannot understand Hindi? If you like, of course, I can switch over to main Hindi and then a mixed and technical terms and quotations in English. Is there someone? Unmute yourself and please let me know. Is there someone? Yes, I am Dr. Harris from Kerala. Okay, fine. I am totally illiterate in Hindi. Okay, in Hindi. I am Manju from Kerala. I cannot
completely follow Hindi. Absolutely okay. So I'll be talking in English only. Of course, there will be here and there one or two Sir, quotations and sir, references. little bit you can use Hindi, no issue. But totally, if you are proceeding Why? in Hindi, Fine, wonderfully done. That's one. Secondly, friends, I'm not very much in favor of an online mode of learning for many reasons, for my own philosophical reasons. One basic thing is I cannot know to what extent I have been able to convey my things to you. It's a online mode. I'm not face to face with all of you. Therefore, as a measure, I have decided that the last 10 or 15 minutes we will be devoting to question answer session between me and you. Of course, if you feel in between, you are free to unmute and ask questions in between. You are welcome. अमरनाथ जायसवाल जी कह रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ओके फाइन आई ट्राई टू अकोमोडेट ऑल ऑफ यू. तो एक और मेरी दिक्कत है, एक्चुअली यूजीसी भी यही कहती है, एएमयू भी यही कहती है, एचआरडीसी भी यही कहती है, टेक्नोलॉजी भी यही कहती है, एथिक्स भी यही कहती है कि आप सभी अपने इस मोड में ऑडियो ऑन एंड वीडियो ऑफ रखें. सॉरी, उल्टा कह दिया मैंने, ऑडियो ऑफ एंड वीडियो ऑन. All of you, may I request to have your audio off and video on. Participant And video I'm on कर ले. reminding you time and again, at least 5 times in between the period of say 80 minutes or 90, whatever I get. मैं बार बार आपसे कहूंगा, वीडियो ऑन रखिए, ऑडियो ऑन रखिए. नैतिक कारणों से, टेक्नोलॉजी के कारणों से, आपके डायरेक्टर साहब के कारणों से, नेट के कारणों से, एमएमटीसी के कारणों से, मैं फिर रिपीट करूंगा, लास्ट रिपीट, कि ऑडियो ऑफ एंड वीडियो ऑन फ्रेंड्स. इसी में एक चीज और जोड़ूंगा. एक्चुअली हम में से बहुत लोग अभी भी साइबर सेवी नहीं हुए हैं, साइबर फ्रेंडली नहीं हुए हैं, इसलिए अक्सर गलती से बार बार आप रेज का बटन, इसके क्वेश्चन का बटन दबा देते हैं. इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग, यू शुड बी पर्टिकुलर, यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट योर बटन. देखिए अभी फिर किसी ने ऑडियो ऑन कर दिया है, उससे डिस्टरबेंस होता है, इको होती है और हम सब लोग एट ए टाइम नहीं सुन पाते, तो दिक्कत होती है. इसलिए अपना हाथ खड़ा करें तो ध्यान से खड़ा करें, नंबर 1. और दूसरों, बार बार ऑडियो गलती से भी ऑन ना कर दीजिएगा. लास्ट एक चीज और, आप लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैसेजेस देते हैं, मैं इनको बहुत अप्रिशिएट नहीं कर पाता. और इससे बाद लास्ट एक और, कई बार आप बीच में फूल से उड़ाते हैं, वो भी मैं बहुत अप्रिशिएट नहीं कर सकता. लेट अस बी अटैच्ड टू द मेन टॉपिक एंड द मेन थीम ऑफ डिस्कशन. आई रिपीट, लास्ट, अभी मैं शुरुआत करने से पहले एक बार फिर कह रहा हूं, ऑडियो ऑफ एंड वीडियो ऑन प्लीज, ऑल ऑफ यू. चलिए हम शुरुआत करते हैं. इंडियन नॉलेज सिस्टम में मैं मुख्य रूप से 4 चीजें कहूंगा. किसी ने ऑडियो ऑन कर रखा है, उससे दिक्कत हो रही है, इको आ जाती है. देखिए बार बार पता चल जाता है, एक भी ऑन करे तो पता चल जाता है. एक किताब है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर राधा कुमुद मुखर्जी. हालांकि कई 8-10 लोगों ने इंडियन एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के बारे में लिखा है. मेनी ऑफ देम हैव रिटन अबाउट इंडियन एजुकेशन, बट द बेस्ट बुक इज बाय प्रोफेसर राधा कुमुद मुखर्जी, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन. बहुत मोटी, बढ़िया, शानदार किताब है. उस किताब में से मैंने अपनी ज्यादातर बातचीत ली है, और उसके बाद और भी कई जगह से ऑफकोर्स, पर वो मेन मेरा सोर्स है. मैं शुरुआत करूं, हमारे यूपी में ही एक शहर है जो दुनिया का ओल्डेस्ट लिविंग सिटी कहा जाता है. द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज इन यूपी. कैन एनीवन टेल मी? मंजू जी, आपका ऑडियो ऑन है, कृपया ऑफ करें. थैंक यू. तो दोस्तों, बनारस वो शहर है जो दुनिया का ओल्डेस्ट लिविंग सिटी कहा जाता है, और वो हमारे प्रदेश में है. हमें इस बात का फख्र होना चाहिए. इसी के साथ मैं कहूं कि इंडियंस की, पहले हिस्से में मैं इंडियंस की बात करूंगा, इंडिया की बात करूंगा.
दूसरे हिस्से में मैं जनरल इंडियन हेरिटेज की बात करूंगा। तीसरी में इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो करेक्टरिस्टिक्स है उनकी बात करूंगा। और लास्ट के हिस्से में मैं कुछ रेफरेंसेस की बात करूंगा, या मैं कुछ वो जो डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज इंडियन एंशिएंट इंडियन सिस्टम में क्या था कैसा था उसकी बात करूंगा। सो फर्स्ट लेट अस बिगिन बाय इंडिया। इंडिया इज बेसिकली ए हिस्ट्री ओरिएंटेड सोसाइटी। यदि कभी आप अपने चाचा दादा नाना ताऊ जी से बात करें, इफ यू टॉक योर अंकल, ही विल से इन माय टाइम दिस वाज ट्रू, हमारे टाइम में 5 रुपए किलो देसी घी था, हमारे टाइम में ये था, हमारे टाइम में ये था। We are so much fond of history. We are so much fond of talking to my time to my youngsters that we always give reference about history of India. एक और खास बात है, भारत का इतिहास बहुत प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा है। We have had a magnificent past. हमारा दुनिया का, यदि हम उसकी बात करें, विश्व के सबसे पुराने ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड, दे आर फ्रॉम इंडिया, द वेदास। इसके बारे में मैं टाइम साइकिल की और बात करना चाहूंगा, बड़ा जरूरी है। आज से 40 साल पहले मुझे बताया गया था कि वेदास जो अर्लीस्ट रिटन डॉक्यूमेंट वेदास की फॉर्म में 1200 ईस्वी पूर्व, यानी अब से 3200 साल पहले लगभग पाए गए थे। 3200 years before the Vedas were written. Later on, very recently, I came across a book by, in fact, उसकी मेरे बारे में मेरी बड़ी misunderstanding थी, बाल गंगाधर तिलक. I came across his book, Arctic People. It's a classic, world classic book. मैं पहले बाल गंगाधर तिलक को केवल एक पॉलिटिकल राइट थिंकर मानता था, एक्टिविस्ट मानता था. Later on, I came to know he was a great educationist also. He taught in Deccan College. He was one of the founders of Deccan College, Pune. He was one of the managers along with Gokhale. They were contemporaries. And he taught philosophy, history, political science. He managed the college for dozens of years. मुझे तीसरी चीज उनके बारे में जो नहीं पता चली कि he was a top astronomist. यो जो cosmic science, cosmology, he was a great expert. And उसने क्या किया, वेदों में ग्रहों की constellations, ग्रहों की जो स्थिति पाई गई थी, he calculated in a reverse way. और बाद में उसका फ्रांस जर्मनी के 50 लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया, और दैट स्टिल स्टैंड्स ट्रू टिल डेट. और उसने पाया कि यदि आज से मैं कॉन्स्टेलेशंस, स्टेलर कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है, तारों की स्थिति को बैक कैलकुलेशन करूं, तो उसने पाया कि ईसा से 8000 साल पहले वेदों का उदय हुआ था. द वेदास वर रिटन at least 8000 before Christ, means at least 10,000 from now. उसको मैं एमएससी बॉटनी में मैंने 2 चीजें पढ़ी थी, वो जो बड़ा इंपॉर्टेंट है. व्हीट 10,000 साल पुरानी फसल है, 10,000 साल पहले व्हीट इस दुनिया में आदमी के लिए मिला. लेकिन वेदों में व्हीट का जिक्र नहीं है, गेहूं का जिक्र नहीं है. वेदों में वी फाइंड रेफरेंस ऑफ बार्ले, जौ का रेफरेंस है. जौ की वो दी जाती थी, आहुति दी जाती थी. जौ का और जौ जो है हमें बॉटनी में फिर बताया गया कि जौ गेहूं से पहले आया था. दिस इज अगेन ए रेफरेंस व्हिच कंफर्म्स दैट द वेदास वर एट लीस्ट 10,000 years old from now. India has been basically a people of religious people. आज भी हमारे यहाँ 1% लोग भी, 2021 का सर्वे हुआ है, not even 1% people have been found to be atheists. We are spiritual by nature. Nature of man is by and large एक बहुत ही spirituality से, एक बहुत ही familial एक relationship से भरी हुई रहती है. इंडियन मेंटालिटी की बात करूं, वी आर फेटलिस्टिक बाय मेंटालिटी, भाग्यवादी लोग हैं हम. जापान से एक बहुत बड़ा पत्रकार आया था 1970-65-70 के आसपास, और उसने कहा कि यहाँ का तो भिखारी भी फिलोसफी झाड़ता है. इवन द बेगर टॉक्स ऑफ फिलोसफी, बेगर टॉक्स ऑफ गॉड, बेगर टॉक्स ऑफ इनकारनेशन.
जन्म, पुनर्जन्म, ईश्वर, आत्मा और ये पाप और ये जो हमारी वो कहलाती है, हम बाद में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। इवन द बेगर टॉक्स इन ए फिलोसॉफिकल वे। मेरे कर्म में नहीं था, कर्म की बात करता है, भक्ति की बात करता है, ईश्वर की बात करता है। वी आर हॉस्पिटेबल बाय नेचर। इंडियंस, दे हैव बीन फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जेबीएस हेल्डेन ने अपनी एक किताब लिखी है, उस किताब में बड़ा एक ऐसे था, हमने बीएससी में पढ़ा था। वो कहता है कि आज अपनी कार में जा रहे हैं गर्मियों की में, और आपके कार में रेडिएटर में पानी कम है, और गांव से गुजर रहे हैं, भारत के गांव से, तो यू विल गेट नॉट ओनली वाटर फॉर योर रेडिएटर, आपको रेडिएटर के पानी मिलेगा, आपको भी पानी मिलेगा, आपको खाना भी मिलेगा, और 10 में से 10 चांसेस हैं कि आपको रोक भी लेंगे, आराम करके गर्मी बिता के फिर जाइएगा। वी आर टॉलरेंट। हम भारी से भारी दुख को बड़ी आसानी से मिटा देते हैं। हमारे इसमें कहा भी गया, दुख भरे दिन बीते रे भैया। वी आर फिलोसॉफिक बाय नेचर, वी आर नॉन मेटेरियलिस्ट बाय नेचर। दोस्तों, आप सबके शहर में कोई ना कोई ऐसा जरूर व्यापारी रहा होगा जिसके बारे में अक्सर लोग व्यंग करते हैं कि क्या है, आया था लोटा डोर लेके आया था, सब जाके यहीं आके वो डेवलप हुआ है, पहले कुछ भी नहीं था, अब जाके डेवलप हुआ। अमीर है तो क्या हुआ, वो कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। हमारी डेमोक्रेसी वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहूंगा इंडिया के बारे में। सारी दुनिया में अफ्रीका, ईस्ट अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सब जगह दास प्रथा रही है। इंडिया में कभी दास प्रथा नहीं रही। हिस्ट्री इज एन एविडेंस। एक और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वी आर दी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। आज से 2000 साल पहले, ईसा से भी 200 साल पहले, वी हैड गणतंत्र, वर्ड्स लाइक गणतंत्र, प्रजातंत्र, गणपति, यूथपति, वी हैड द वर्ड्स लाइक दैट। एंड हमारे यहाँ काफी हिस्से में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी। इकोनॉमिक फिलोसफी हमारी अपनी बड़े अलग से रही है। एक और बड़ी खास बात, इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में, लैंड्स एंड कल्चर के बारे में कहा जाता है कि व्हाट इज इंडियन कल्चर, इट इज एग्रीकल्चर। एक और खास बात, यहाँ के बड़ी टिपिकल में बात कहा करता हूं दोस्तों, आज भी दुनिया का सबसे यूनिक देश है भारत। भारत दुनिया के उन बिरले देशों में से एक है जहां +55 और -55 टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक बार में ही होता है। एक हिस्से में +55 है, एक हिस्से में -55 है। इसी वजह से वी आर ए नेशन विद द हाईएस्ट फ्लोरा एंड फोना, फाइटोजियोग्राफी एंड जू जियोग्राफी कहा जाता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स, दुनिया की प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड इंडिया में एग्जिस्ट करता है। हमारी पॉपुलेशन है, हमारी नीड्स है, हमारी एस्पिरेशंस है। अभी जो बढ़ता हुआ वेस्टर्नाइजेशन इंडिया में आ रहा है, आज इंडिया में केरल, तमिलनाडु से लेकर और कश्मीर तक पहुंच जाइए, धोती कुर्ते वाले युवा किसान बहुत कम मिलते हैं। मॉडर्न यदि इसमें बात करें, हमारे मॉडर्न थिंकर्स में वी हैव गांधी, टैगोर, श्री अरबिंदो, विवेकानंद, इकबाल, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णन। वी हैव साइंटिस्ट लाइक सीवी रमन, जगदीश चंद्र बासु, मेघनाथ साहा, रामानुज, एपीजे कलाम। एंड इन एजुकेशन ऑल्सो हम पर बहुत बड़ी बपौती है। केवल इंडिपेंडेंस के बाद ही ले लें, 1949 डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन, 53 मुदालियर कमीशन, 68 कोठारी कमीशन, 76 ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, 1986 न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, उसी 1991 आचार्य राममूर्ति कमेटी। और पूर्ण विनयशीलता से कहूंगा कि मुझे भी सौभाग्य मिला, मुझे इनवाइट किया गया इस कमेटी के द्वारा 2 चैप्टर्स लिखने के लिए। तो 2 चैप्टर्स लिखने में मैंने यहाँ योगदान दिया। उसके बाद यशपाल कमेटी, जनार्दन रेड्डी कमेटी, एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 और 2020 का नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ये तो रहा हमारी बैकग्राउंड, इंडिया की बैकग्राउंड। अब मैं इंडियन नॉलेज का जो हेरिटेज है, द इंडियन हेरिटेज, यहां सबसे पहले राजा कुमुद मुखर्जी ने जो अपनी किताब में, मुखर्जी साहब ने जो अपनी किताब में दिया है रेफरेंस, उसकी बात करना चाहूंगा।
Gurukul system of education, which is one of the most ancient system of education existing all over the world. 4-5 बातें इसकी मैं कहना चाहूंगा. दुनिया की बहुत अनूठी बातें हैं दोस्तों, और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज ले लें, येल ले लें, स्टैनफोर्ड ले लें, ये मैसाचुसेट्स MIT ले लें, आज भी कई मायनों में बराबरी नहीं कर पाती है हमारी. मैं सबसे पहले बात कहूं, हमारे यहाँ रेफरेंस मिलता है 5 महाआचार्यों का. वी हैव ए रेफरेंस टू 5 महाआचार्यस. दोस्तों मैं याद दिला दूं, many of us are not again audio off and video on please. Audio off, video on please. Yes friends, please don't do it. मैं अक्सर बेईमान शब्द का इस्तेमाल अपनी कक्षा में किया करता था, मैं नहीं करना चाहूंगा, मुझे मजबूर ना कीजिएगा. I do not want to use the word बेईमान. तो 5 महाआचार्य हमारे यहाँ होते थे. Who was a महाआचार्य? A महाआचार्य is one whose Gurukul is also known as, yes, कोई ऑडियो किसी ने बोला, whose Gurukul is also known by the name of Mahagurukul. And so the definition is a Mahacharya is one in whose Gurukul they have the facilities for boarding, lodging and education of 10,000 children for 12 years. आज भी दुनिया की कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी पर इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि जहां 10,000 बच्चों को 12 साल तक रहना, खाने और पढ़ाने की सुविधाएं मौजूद हों. इतने बड़े रिसोर्सेज हमारे यहाँ गुरुकुल्स के थे. एंड दे वर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द किंग्स. शहरों से दूर, गांवों से दूर, अरण्यक संस्कृति, जंगल संस्कृति में बहुत दूर अंदर जाकर रहते थे ये गुरुकुल, महागुरुकुल, ये सभी जो गुरुकुल होते थे. एक और खास बात, हम लोगों को बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दी गई है कि ये गुरुकुल इट वाज ए स्कूल सिस्टम, ज्यादा प्राइमरी ना सही, सेकेंड एजुकेशन सिस्टम था, इससे ज्यादा नहीं था. इट्स रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. इनफैक्ट दिस वाज ए कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम. It was a complete integrated education system which combined all primary, pre-primary, if we say primary, secondary, tertiary, if tertiary includes college and university education, it included all. इसका proof ये है, in all these gurukuls, minimum 18 subjects were taught, maximum 25 subjects were taught in all the gurukuls, at least 18 and minimum 25. वेद, वेदांग, उपवेद, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, मृग विद्या, सर्प विद्या, चर्म विद्या, विधि शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और न जाने क्या क्या सब पढ़ाया जाता था. पहली से लेकर और आखिरी तक सब पढ़ाया जाता था. एक और खास बात, हम लोगों को फिर और एक मिसअंडरस्टैंडिंग दे दी गई है. हम लोगों की किताबों में ज्यादातर लिखा रहता है कि इट वाज एजुकेशन सिस्टम फॉर 12 years. No, absolutely wrong. Most of the gurukuls had the education provision for 12 years, but there were gurukuls who had the provision of education for 24 years. There were gurukuls who had the provision for education of 36 years. There were gurukuls who had the provision of education for 48 years. बाकायदा इस किताब में, जो राधा कुमुद मुखर्जी की किताब में, बाकायदा छात्रों का डिवीजन किया हुआ है. कितने प्रकार के छात्र थे? परिव्राजक, नैष्ठिक ब्राह्मण, ब्रह्मवादिनी, सावित्र, प्रजापत्र, गायत्र. ये 1 साल का है, पढ़ाने वाला है. ये 2 साल पढ़े हुए हैं इसको. ये 12 साल पढ़ेगा. ये सारी उम्र पढ़ेगा. There were hundreds of scholars who used to say, "Sir, we want to study throughout life." Okay, you are welcome. आज भी दुनिया में सारी यूनिवर्सिटीज में कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहां के स्टूडेंट कहे कि मैं सारी उम्र यूनिवर्सिटी में ही रह के पढ़ूंगा. तो वी हैड सच ए यूनिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन कि जहां पूरी उम्र स्टूडेंट रहकर व्यक्ति पढ़ सकता, काम कर सकता था. ठीक इस तरह से एक और बड़ी खास बात है, यूनिक है, आज 2024 में भी इंडिया की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज दे आर ओबेइंग दैट लॉ विद knowingly or unknowingly.
आप ले लें, दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लें, जामिया ले लें, जेएनयू ले लें, अलीगढ़ ले लें, बनारस ले लें, लखनऊ ले लें, इलाहाबाद ले लें, बड़ौदा ले लें, चेन्नई ले लें, हैदराबाद ले लें, ऑल यूनिवर्सिटीज यू विल फाइंड एक मैप दिया हुआ है राधा कुमुद मुखर्जी की किताब में कि देयर वाज अ वाइस चांसलर्स रेजिडेंस, कुलपति निवास, उसके एक साइड रहता था गेस्ट हाउस. In all these universities which I have mentioned, the guest house is just adjacent to the vice chancellor's residence. मैप हम जो आज भी फॉलो करते हैं वो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का मैप फॉलो कर रहे हैं. नोवेयर इन द वर्ल्ड आप कहीं भी चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, ब्रिटेन में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहां गेस्ट हाउस और इस सब का वीसी रेसिडेंस की कॉन्सेप्ट ही नहीं है. इट वाज ओनली एंड ओनली इन इंडिया. और इसको एक और वो मैप में दिखाया गया कि यहाँ गुरुकुल कुलपति का निवास है, इसकी साइड में ये गेस्ट हाउस है, दूसरी साइड में रुग्णालय. रुग्णालय मीन्स हॉस्पिटल फॉर द स्टूडेंट्स. और उसी के साथ देन देयर वर रेसिडेंसेस. रेसिडेंसेस भी बड़े टिपिकल थे. टीचर्स रेसिडेंस अकेले नहीं थे. देयर वर student residence in between one teacher residence, then student residence in between one student residence, then this way all teachers were residing between the students living. ये बड़ी खास बात थी. और भी बातें हैं, बहुत सी हैं, मैं और ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा. अग्नि रक्षा की बात है, एजुकेशनल टूरिज्म होती थी. देयर वर नेशनल सेमिनार्स, एटलीस्ट वीकली सेमिनार्स, छोटी से छोटी सेमिनार भी वीकली होती थी, और इवन मंथली सेमिनार्स. 6-6 महीने के लिए लोग प्रवास पर शिक्षाटन के लिए दूर दूर जाते थे. एक और खास बात, ये जो 5 महाआचार्य थे, ये साल में एक बार किसी एक जगह इकट्ठे होते थे और 1 महीने के लिए वहां रहते थे. एनीबडी फ्रॉम द वर्ल्ड वाज इनवाइटेड टू कम. अरे वो उसका स्वागत था, वो आ सकता है और कोई भी सवाल पूछ सकता है इन लोगों से. And these Mahacharyas used to stay at one place together for 1 month, and they used to discuss all kinds of things: agriculture, politics, economics, history, living beings, political sciences, social conditions, cultural conditions, whatever issues, moral conditions, ethics, morality, life, quality of life, dignity of human being, all kind of questions they used to discuss. इतना शानदार. यदि इसकी आज इम्प्लीकेशन करें हम, आज भारत में लगभग 1500 यूनिवर्सिटीज हैं. इन 1500 यूनिवर्सिटीज के टॉप मान लो 50 वाइस चांसलर्स को हम साल में एक बार कहीं भी कहें कि दिल्ली या चेन्नई या कलकत्ता या कहीं भी बीच में रुकें, महीने भर के लिए रुकें और वो सारे अपना मंथन करें. दे churn out the thoughts about everything in the world, and उसको एक अपना एक, तो मुझे लगता है देश का कल्याण निश्चित रूप से ज्यादा हो पाएगा. चलिए खैर, अब मैं एक रेफरेंस और देना चाहूंगा. वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक बुक ऑफ द वर्ल्ड. चाणक्य नाम का एक व्यक्ति था जिसके 3 नाम थे. पहले ये माना जाता था, इट वाज अंडरस्टूड दैट देयर वर 3 डिफरेंट पीपल. नो, दे वर नॉट 3, दे वर ओनली 1 पीपल. चाणक्य भी नाम था, विष्णुगुप्त भी नाम था, कौटिल्य भी नाम था, और उसने कौटिल्य अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी. उस अर्थशास्त्र में मोटे तौर पर 4 डिविजन्स थी: अन्वीक्षा, त्रयी, वृत्ति और दंड नीति. अन्वीक्षा में कंटेम्परेरी साइंस, लॉजिक, फिलोसफी की बात की गई है. त्रयी में नॉलेज और वेदास की बात की गई है. वृत्ति में एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स की बात की गई है. दंड नीति में पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है. दिस इज ए ग्रेट क्लासिक बुक. ये इकोनॉमिक्स की भी किताब है, पॉलिटिकल साइंस की भी किताब है, मैनेजमेंट की भी किताब है, एथिक्स की भी किताब है, सोशल फिलोसफी की भी किताब है. इट्स ए ग्रेट बुक. जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में अरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेट, प्लेटो, अरिस्टोटल का नाम लिया जाता है, उसी तरह हम लोग चाणक्य की अर्थशास्त्र का नाम ले सकते हैं. दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा 14 विद्याओं के बारे में. भारत में 14 विद्याएं मानी गई हैं. कुछ लोग कहते हैं 14 नहीं 18 विद्याएं थी, तो हम 18 विद्याएं ही पढ़ लेंगे. 14 के बाद 4 जो और विद्या मानते हैं उनको भी हम पढ़ लेंगे. मैं एक बार फिर याद दिला दूं, ऑडियो ऑफ एंड वीडियो ऑन. मैं 3 लोगों को देख पा रहा हूं, शरक तालुकदार जी, स्नेहाशीष भक्त जी और बख्तियार खान साहब ही लगातार वीडियो ऑन है. बाकी सब लोग गड़बड़ कर रहे हैं. प्लीज डोंट डू इट.
ऑल ऑफ यू, ऑडियो ऑन एंड वीडियो, ऑडियो ऑफ एंड वीडियो ऑन प्लीज। चलिए जी, 14 विद्याओं में सबसे पहले हमारे 4 वेद आते हैं। अब ये बड़ा लंबा विषय है, मैं इसमें से बात नहीं कहूंगा। कहा जाता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वेदों के बारे में कहा जाता है कि जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है, और जो कहीं नहीं है वो यहां है। 4 वेद माने गए हैं। इन वेदों में भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसके बाद यजुर्वेद है, उसके बाद सामवेद है, और लास्ट में अथर्ववेद है। यहां ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में ईश्वर या पावर्स की प्रेयर्स की बात की गई है, डाइटीज की, देवों की, टू प्रे, हाउ टू प्रे, व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रेइंग, व्हाट इज द कॉज, इसका प्रे का क्यों करना चाहिए, प्रेयर क्यों करनी चाहिए, इन सारी बातें की गई है। यहां मैं एक चीज और कहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ब्रिटलैंड कमेटी यूएनओ ने बनाई थी 1987 में। ब्रिटलैंड कमेटी एजुकेशन पर यूएनओ ने कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी में उसने इसमें जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में प्रीफेस में और फर्स्ट चैप्टर में लगातार दर्जनों बार वेदों को कोट किया गया, ऋग्वेद को कोट किया गया। और उसी ऋग्वेद से जो एक श्लोक मैंने 1977 में पढ़ा था, मैं आपके साथ शेयर करूं। एजुकेशन की आज भी इसकी बड़ी ग्रेट इम्प्लीकेशंस हैं, और सारी यूनिवर्सिटीज में उसको अक्सर कोट किया जाता है। हमारा केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय, जहां से मैंने बीएड, एमएड, एमफिल किया, वहां 2 साल पढ़ाया। शुरुआत मैंने वहां से की थी। उसके बाद मैंने इंदौर यूनिवर्सिटी 19 साल बच्चे बिगाड़े। उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी 17 साल तक रहा हूं। तो केंद्रीय शिक्षा संस्थान का जो कुल अपना वो था, किसी भी कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले वो सहगान हमारा गाया जाता था, वो वेदों से, ऋग्वेद से लिया गया है। संगत छद्म संवदम संवो मनान से जानताम। संगत छद्म, टीचर कह रहा है स्टूडेंट से, संगत छद्म, लेट अस मूव टुगेदर, लेट अस गो टुगेदर। संगत छद्म संवदद्वम, लेट अस टॉक टुगेदर। संगत छद्म संवदद्वम संगो मनांसि, लेट अस थिंक टुगेदर। संगत छद्म संवदद्वम संगो मनांसि जानताम संज्ञानताम, लेट अस हैव नॉलेज टुगेदर। दुनिया में ये पहला डॉक्यूमेंट था जहां टीचर में, अभी जो भी हमारे 19वीं सदी में आया है, और हमारे यहाँ बात की जाती थी कि हम लोग मिलकर पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, टीचर स्टूडेंट के साथ साथ ज्ञान हासिल करेंगे। जो हमारा अथर्ववेद है, अथर्ववेद के चीफ एडिटर अथर्व ऋषि थे। और मैंने जो पढ़ा, अथर्ववेद का जो टाइम साइकिल है वो ये है कि जिस समय महाभारत युद्ध होने जा रहा था, उससे पहले अथर्ववेद लिखा जा चुका था। द अथर्ववेद वाज कंप्लीटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द महाभारत वार, ग्रेट वार ऑफ महाभारत। एक और खास बात अथर्ववेद की है, बाकी तीनों वेदों में मैंने बताया ईश्वर की अर्चना है, पूजा के तौर तरीके हैं, फिलोसफी है, इस सब की बात है। एक अथर्ववेद में जिंदगी के हर पहलू पर बात की गई है। लड़के या लड़की का विवाह कैसे करें, विवाह के लिए कैसे ढूंढें, बेटी बेटा, लड़का दामाद बेटी कैसे ढूंढें, इसमें बात की गई है। आपके घर में चोर आ जाए तो क्या करें, दुश्मन आ जाए तो क्या करें। छोटी से छोटी दुनिया की हर बात को अथर्ववेद में वी विल फाइंड रेफरेंस इन अथर्ववेद। एक और खास बात बड़ी टिपिकल है, अथर्व यानी चारों वेदों के 4 हिस्से थे, आरण्यक, ब्राह्मण, संहिता और उपनिषद। और चारों वेदों में आरण्यक, ब्राह्मण, संहिता, उपनिषद। सच बात यह है कि ये लेटर उपनिषद की जो बात की गई, इन्हीं उपनिषदिक सेक्शन को लेकर ही बाद में वेदांत की बात की गई है, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। खैर, तो इन वेदों में एक और बड़ी खास बात है, 1 2 10 नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों महिलाओं ने इनके राइटिंग में मदद की है। एक्चुअली सारा हम लोगों को छिपा दिया गया है, हटा दिया गया है, बताया नहीं है। देयर आर डजन्स एंड डजन्स ऑफ वुमेन
who have been part and parcel of writing these Vedas, and they have taken active part in the writing of the Vedas. ये हो गए 4 उपनिषद। उपनिषद के बाद 6 वेदांग आते हैं, तो 4 और 6 10 विद्याएं हो जाएंगी एक साथ। 6 वेदांग हैं। इन वेदांगों के हम नाम जाने। पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। शिक्षा एक वेदांग माना गया है, वेद का अंग माना गया है। वेद तो है लेकिन वेद से छोटा है, लोअर लेवल पर शिक्षा। शिक्षा में के बाद कल्प। कल्प क्या है? कल्प के 3 कल्प माने गए हैं, गृहस्थ कल्प, धर्म कल्प, सल्व कल्प। गृहस्थ जीवन कैसे दिया जाए, धर्म का आचरण कैसे किया जाए, सल्व जिंदगी में अच्छी बातें, मोक्ष वगैरह की बातें कैसे की जाए। व्याकरण, द ग्रामर, पाणिनि का व्याकरण बाद में कालांतर में बताया गया कि इसी से निकाला गया है, का पाणिनि का ये सोर्स से ही बना था ये व्याकरण। हाउ टू राइट ग्रामर, द प्रॉपर राइटिंग, द प्रॉपर लैंग्वेज ग्रामर। छंद, हाउ टू राइट पोइट्री। छंद में भी पिंगल सूत्र और छंद सूत्र। पोइट्री कैसे लिखी जाए, द ग्रामर ऑफ राइटिंग पोइट्री। आज भी सारी दुनिया में, सारे देश में पोइट्री लिखने की तहजीब है, तमीज है। इतने अक्षर होने चाहिए, इतनी मात्राएं होनी चाहिए, इतनी लघु मात्राएं होनी चाहिए, इतनी दीर्घ मात्राएं होनी चाहिए। तो हमें छंद से पता चलता है। निरुक्त, निरुक्त मीन्स एटाइमोलॉजी। एटाइमोलॉजी मतलब शब्द मीमांसा, द मीनिंग ऑफ मीनिंग। इनफैक्ट मेरी एमए की थीसिस, जो एमए फिलोसफी की थीसिस थी, उसका थीसिस का टाइटल था द मीनिंग ऑफ मीनिंग। तो वो निरुक्त के अंतर्गत आएगी। निरुक्त में मुझे कल पिछले महीने भर पहले ही एक आदमी का नाम पता चला, हलायुध, 10वीं सेंचुरी में हुए थे। उनका हलायुध कोश आज भी सारी दुनिया में, संस्कृत टू संस्कृत जो कोश है, जो मीनिंग ऑफ वर्ड संस्कृत इन द थ्रू द संस्कृत, संस्कृत संस्कृत कोश, हलायुध कोश की बात आज भी की जाती है। इट इज वन ऑफ द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। तो निरुक्त। और छठा है ज्योतिष। ज्योतिष जिसको नजूमी शास्त्र कहा जाता है, नजूमी या ये ज्योतिष पहले से ही जानना, ग्रहों की स्थितियों के अनुसार, नक्षत्र विज्ञान के अनुसार उनकी मदद लेकर भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करना। तो ये 6 हुए वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। 4 और 6 हो गए 10 विद्याएं हो गई। 14 विद्याएं बात की गई है। 11वीं विद्या माना गया है इतिहास को। इतिहास क्या है? मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था इतिहास, जिसका अशोक तहसीलदार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी प्लीज, आपने हाथ खड़ा किया है। डू यू वांट टू से समथिंग सर? अशोक जी, देखिए मुझे लग रहा था कि गलती से लग रहा उठ गया है। हाँ बिल्कुल पक्का। मैं इसलिए कहता हूँ 10 साल का हो गया हूँ, आप लोग युवा लोग हैं, आपका और शानदार कंट्रोल, मुझसे शानदार कंट्रोल होना चाहिए आपका। गलती मुझसे भी होती है, ऐसा नहीं है। खैर, तो इतिहास मेरे टीचर पढ़ाते थे, व्हाटएवर हैज हैपेंड इन द पास्ट, जो कुछ भी पहले घट चुका है वो सब इतिहास है, जिसका हास हो चुका है, जो नष्ट हो चुका है। द टाइम विच हैज गॉन पास्ट इन द पास्ट, इट मे बी ए रिमोट पास्ट, इट मे बी ए इमीडिएट पास्ट। अभी जो जैसे अशोक जी ने कहा कि गलती से हाथ खड़ा हो गया, जैसे इमीडिएट पास्ट था, अभी 1 मिनट पहले का ही था ये। तो 1 मिनट पहले भी जो घटना घटी है, दैट इज ए मैटर ऑफ हिस्ट्री। व्हाटएवर हैज हैपेंड इन द पास्ट इज ए मैटर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास में रामायण पढ़ा जाता था, महाभारत पढ़ा जाता था, और पुराण पढ़ा जाता है। 3 भाग हैं इतिहास के, 3 अंग माने गए हैं, रामायण, महाभारत, पुराण। पुराण यूं तो कहते हैं 18 पुराण हैं, कुछ लोग इसको माइथोलॉजी से भी जोड़ते हैं कि मिथक है, जरूरी नहीं है, ऐसे ही कहानी बना ली है। मे बी, मैं नहीं जानता, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मिथक माना जाता है, इनको मिथ्स माना जाता है। पुराणों में भी 2 पुराण बहुत प्रसिद्ध हैं, बड़े हैं, पुराने हैं, विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण। ये भी इंडियन नॉलेज सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। तो
रामायण, महाभारत और पुराण। रामायण के बारे में मैं कहूंगा, मेरी मुलाकात थी, कई बार मुलाकात थी, मुझे फोन नंबर भी उन्होंने दिया, मैं जानता भी था, वहां रहते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, खालसा कॉलेज में प्रोफेसर नरेंद्र कोहली जी पढ़ाते थे हिंदी। उन्होंने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है, 8 अंग उसके पार्ट्स के, छोटे पार्ट्स की, रामायण में दीक्षा, अग्नि, अवसर, अभियान, संघर्ष, युद्ध, विजय। और ये किताबों में उन्होंने आधुनिक संदर्भों में, इसमें उन्होंने, मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात करूंगा, रामायण काल में 80 से भी ज्यादा प्रकार के आयुध, अस्त्र शस्त्र, आर्म्स की बात की है। There were more than 80 different types of arms and ammunitions which were existing at the time of रामायण। महाभारत में 80 से और ज्यादा बढ़ गए। महाभारत में फिर नरेंद्र कोहली जी ने 8 वॉल्यूम की समर गाथा नाम की पुस्तक लिखी है। मैंने दोनों पढ़ी है, दोनों मेरे पास यहीं रखी हैं। समर गाथा की बड़ी खास बात यह है, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कॉमन आदमी को समझाने के लिए, और उन्होंने बड़ी शानदार ढंग से ये बताया, कृष्ण कोई भगवान नहीं थे, वो ये कहते एक नहीं, लेकिन महामानव थे। ही वॉज ए ग्रेट मैन, ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट पावर्स। आज भी आप पाएंगे अपने चारों और आपके आसपास मिल जाएंगे, बहुत से आदमी हैं। मैं आज की आधुनिक की एक बड़ा बढ़िया आज का रेफरेंस देता हूँ। मुश्किल से 150 साल पहले कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोल। श्रवण बेलगोल में एक महारानी थी शांतला, उनके नाम पर 3 वॉल्यूम की किताब है, मेरे पास यहीं रखी है, बगल में वो रही है, मुझे दिख रही है, शांतला। उन पर किताब का नाम है पट्ट महादेवी शांतला। उस शांतला के बारे में कहा जाता है कि वो शांतला लैंग्वेज की, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, वेद की, वेदांग की, उपनिषदों की, आर्किटेक्चर की, स्थापत्य कला की, दर्शन की, 50 विषयों की महाविदुषी थी वो महिला। दूर दूर से, देश और विदेश से लोग उससे कंसल्ट करने आते थे, उससे राय लेने आते थे, उसका मशवरा लेना, उसका व्यू पॉइंट लेने आते थे, न्याय शास्त्र की उससे बात करने आते थे, उसके साथ चिंतन करने आते थे। सो लेडी नेम, जिसका हम लोगों को रेफरेंस किसी को नहीं बताया जाता, पट्ट महादेवी शांतला। मुझे लगता है मैं आपको किताब दिखाई दूं, मेरे बगल में ही रखी है। तीन वॉल्यूम की एक किताब है, इसका ऊपर लिखा हुआ है पट्ट महादेवी शांतला। बहुत शानदार दुनिया की किताब है। तो ठीक इसी तरह से यदि आप पाएंगे कि बहुत लोग हुए हैं ज्ञानी, परम ज्ञानी हुए हैं, उन लोगों का रेफरेंस मैं आपको ये भी दिखा दूं लगे हाथ, हालांकि मुझे नहीं मालूम आप लोग कितना उससे रिएक्ट कर पाएंगे। ये एक वॉल्यूम है, 8 वॉल्यूम है। प्रत्यक्ष, ये तीसरा वॉल्यूम है, शायद 7वां वॉल्यूम है, प्रत्यक्ष, नरेंद्र कोहली जी का महासमर। इट्स अगेन आई वुड से क्लासिक बुक ऑन हिंदी, जो कि महाभारत को मॉडर्न आदमी को, कॉमन आदमी को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ये समझाने के लिए कि इतिहास क्या है, क्या लोग थे, कैसा कल्चर था, कैसे लोग अपना रहते थे, कैसे मकान थे, कैसे आयुध थे, उस समय का जो नॉलेज है, कैसी विज्ञान थी, इवन इसमें विज्ञान, मेटलर्जी के जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, उन सबका वर्णन इन पुस्तकों में मिलता है। 8 वॉल्यूम की किताब, आई वुड से इट्स ए ग्रेट ट्रीटीज। तो इतिहास में बात हुई रामायण, महाभारत, पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण की, और वैसे भी 16 पुराण और हैं, मत्स्य पुराण है, वराह पुराण है, गरुड़ पुराण है, किसी के मरने पर हम लोग करते हैं। तो दोस्तों ये हो गई 11 विद्याएं, 4 वेद, 6 वेदांग, एक हो गया इतिहास। 12वीं विद्या है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में आचार, विचार, प्रायश्चित, दंड, द वे ऑफ लाइफ, the method of living life, how we should talk, how we should behave, what should be our actions, how should be our thinking thought pattern, और how should we repent, प्रायश्चित कैसे होना चाहिए, how should we penalize the one who has committed a sin, उस पर बात की गई है। धर्मशास्त्र में मनुस्मृति की बात है,
याज्ञवल्क्य स्मृति की बात है और पाराशर स्मृति की बात है। 3 स्मृतियां रखा गया। स्मृति का मीनिंग है टेक्स्ट, या स्मृति का मीनिंग है रिटन वर्ड। सो रिटन वर्ड और टेक्स्ट वाज मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति एंड पाराशर स्मृति। इनमें एक और है, कात्यायन साहब ने एबिलिटी ग्रुपिंग्स की थी। कात्यायन की किताब मिलती है हमें। देखिए आज भी सारे देश में आपने पाया हुआ, हमारे आपके स्कूल में अक्सर रहता था कि मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चों को ए सेक्शन में रखते थे, मीडियम बच्चों को बी सेक्शन में रखते थे, कमजोर बच्चों को सी सेक्शन में रहते थे, और सी सेक्शन में सबसे बढ़िया टीचर देते थे। सी सेक्शन की क्लास भी थोड़ा ज्यादा देर तक लगाते थे और कोशिश करते थे कि ये सारे बच्चे हमारे बढ़िया से बढ़िया नंबरों से पास हों। उस तरह की एबिलिटी ग्रुपिंग कात्यायन के अपने समय में होती थी। कात्यायन, इसी के साथ एक और आदमी का नाम दिया जाता है, बाणभट्ट। बाणभट्ट पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी एक किताब लिखी है। बाणभट्ट ने 64 कलाओं की बात की है, और उन कलाओं में जो कोपरनिकस और गैलीलियो की बात करते हैं, हम फिजिक्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो बाणभट्ट ने उन सबका बड़ा डिटेल्ड वर्णन दिया है। तो ये हो गई 12 विद्याएं। मैं बार बार बताता जा रहा हूं, 4 वेद, 6 वेदांग, 1 इतिहास, 11, 12 धर्मशास्त्र, 13वां आता है दर्शन। दर्शन एक माना गया है कि दर्शन एक विद्या है, लेकिन दर्शन 6 हमारे यहाँ 12 माने गए। 6 ऑर्थोडॉक्स क्लासिकल फिलोसफी और 6 मॉडर्न मानी गई हैं। ऑर्थोडॉक्स में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन माने गए हैं। सांख्य वेद, सांख्य जो दर्शन है वो कपिल मुनि ने दिया था, और सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति और त्रिगुणात्मक प्रकृति है। त्रिगुणात्मक प्रकृति, अव्यक्त से व्यक्त, इवोल्यूशन कैसे हुआ दुनिया का, मनुष्य का, दुनिया की विशिष्ट चीजों का, सारी चीजों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, और कैसे एक इन्होंने, इसीलिए एक कुछ लोग इसको कहते हैं कि सांख्य के कारण भी इसका सांख्य शास्त्र नाम पड़ा। सांख्य करिका ईश्वर कृष्ण ने लिखी थी, उन्होंने किताब, वो अभी भी अवेलेबल है। ये चेन्नई यूनिवर्सिटी ने उसको छापा है लास्ट में, जो वन ऑफ द बेस्ट एंड ऑथेंटिक किताब मानी जाती है। इसमें बात की गई है कि पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, और फिर एक मन, और फिर 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिय और 5 महाभूत, 21 और 1 22 और 1 23 और 1 24 और 1 25 संख्याओं की बात की गई है। ये सांख्य दर्शन की बात है, हाउ इवोल्यूशन केम टू बी। सांख्य योग, योग में बात की गई है जो वर्ल्डली एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है और गॉडली वर्ल्ड है, इनकी यूनियन कैसे की जाए। हालांकि सारी दुनिया में जो योग चल रहा है, हमारा अभी आने वाला योग दिवस आएगा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, उसमें, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी मुझे वो कमी नजर आती है कि वो योग के 8 अंगों में से केवल एक अंग आसन वाले को ही योग मान लिया गया है, जो नितांत गलत है। सारे आसन बेकार हैं यदि यम और नियम का पालन नहीं हुआ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग माना जाता है। ये यम और नियम बड़ा जरूरी है। व्यक्ति यम और नियम का पालन नहीं करेगा और उसके बिना आसन करेगा तो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये योग दर्शन की बात। योग दर्शन भी 2 माने गए हैं, एक वशिष्ठ योग था और दूसरा पातंजलि योग है। तो जो वर्तमान में हम लोग सब लोग करते हैं वो पातंजलि योग सूत्रम है। उसका पहला ही सूत्र माना गया है चित्त वृत्ति निरोध इति योग दर्शनम। चित्त की वृत्तियों का निरोध करने को ही, चित्त की वृत्तियों को रोकने से, चित्त की वृत्तियों को उनके भोजन से नियंत्रण करने की प्रक्रिया को ही योग दर्शन कहा जाता है। सांख्य योग, न्याय शास्त्र, हमारे यहाँ इसको एक अलग विद्या भी माना गया है, लेकिन न्याय शास्त्र अलग है। न्याय शास्त्र में फिर हमें माना गया है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, भेद, और फिर इसमें दरअसल वाद विवाद, जल्प, वितंडा, तर्क करना, कुतर्क करना, इन सारी तरह की जो
एक्चुअली एरिस्टोटेलियन लॉजिक में 3 टर्म मानी गई हैं, हमारे इंडियन लॉजिक में 5 टर्म मानी गई हैं। आज भी एरिस्टोटेलियन लॉजिक आज दुनिया में यूज होता है, लेकिन जो इंडियन लॉजिक है इससे ज्यादा डिटेल्ड माना जाता है न्याय शास्त्र में। तो न्याय शास्त्र के प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, प्रत्यभिज्ञा वगैरह इस सब को पूरा लेकर किस तरह से शब्दों का तर्क करके उत्तर लिए जाएं, न्याय किया जाए, सत्य और असत्य में भेद किया जाए, न्याय शास्त्र इसका शास्त्र है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। वैशेषिक फिर मैं कहूं, कणाद मुनि ने बताया था वैशेषिक दर्शन को। दुनिया में इवोल्यूशन फिर कैसे होगा, उसी तरह का एक सांख्य की तरह से एक अलग नजरिया देता है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। एक बड़ा, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप ये गूगल में पढ़ सकते हैं। इसमें समवाय और अभाव एक नई कॉन्सेप्ट है जो दुनिया में अलग से इंडियन फिलोसफी देती है। वैशेषिक दर्शन फिर हम बताएं, मैं बताऊं कि दुनिया का एक बड़ा अनूठा, एक चीजें कैसे आई, दुनिया कैसे बनी, दुनिया में वस्तुएं कैसे बनी, वस्तुओं में आपस में इंटीग्रेशन कैसे हुआ, इंटरेक्शन कैसे हुआ। इसमें द्रव्य 9 माने गए हैं, गुण 24 माने गए हैं, कर्म 5 माने गए हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेष, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, समवाय कैसे उनका इंटीग्रेशन हुआ, और अभाव। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। पूर्व मीमांसा के 3 नाम हैं। ये भी एक विद्या है, ये भी एक उसमें मानी गई है, दर्शन है। पूर्व मीमांसा एक नाम है, कर्मकांड दूसरा नाम है, और पूर्व मीमांसा कर्मकांड और मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इस समय, अभी आ जाएगा, नाम याद आ जाएगा। 3 नाम पूर्व मीमांसा के रखे गए हैं। ठीक, पूर्व मीमांसा मेरी, आपकी दादी नानी मुझसे आपसे बढ़िया जानती है। करनी भरनी, पाप पुण्य, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, ये सारी जो कल्पनाएं हैं, ये सब, ये जन्म चक्र, मृत्यु चक्र, पुनर्जन्म चक्र, कर्म चक्र, इन सब की, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, इस सब की बात हमारी दादी नानी बहुत शानदार ढंग से एक्सप्लेन करके बताती है। तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के फिर 3 नाम हैं। उत्तर मीमांसा एक नाम, वेदांत दूसरा नाम, उपनिषद तीसरा नाम। उपनिषद का जो वर्ड मीनिंग है, निकट बैठना, साथ में बैठना। अपना हर जो अलग अलग लोग अपने अपने स्पेशलाइजेशंस के लोग होते थे, वो किस प्रकार लोगों को अपना स्कूल ऑफ थॉट, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलोसफी उनको सिखाते थे, बताते थे, उसकी साइंस उपनिषद है। वैसे तो 108 उपनिषद माने गए हैं, कुछ लोग 5-6 उपनिषद 1-1, 2-2 पेज के ही हैं। तो 108 को मैंने जनरली, मतलब मेरे पास तो थे, सारे ही थे, देखा है मैंने उसमें। लेकिन बड़े उपनिषद कुछ लोग कहते हैं 18 उपनिषद हैं, कुछ लोग कहते हैं 18 नहीं है, 10 ही हैं। कुछ लोग कहते हैं भारतीय जो अपना बंबई से जो ज्ञानपीठ वाला है, उन्होंने 8 ही उपनिषद, प्रिंसिपल उपनिषद छापे हैं। ये 8 उपनिषद में आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे, प्रश्नोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, ईशोपनिषद, ईशवास्योपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, ये सारे उपनिषद हैं। उपनिषद में मूल रूप से ब्रह्म की बात की गई है, ईश्वर की बात की गई है, समाज की बात की गई है, माया की बात की गई है, और इस तरह से ब्रह्म, ईश्वर, जीव, जगत, माया, इसकी तरह से ब्रह्मांड को, विश्व को, कॉस्मोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है। ये कहलाता है, जैसे मैंने बताया, उत्तर मीमांसा, यानी मीमांसा, लेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदास, वेदों के बाद का काल का, वेदों की जो इंटरप्रिटेशन है, वेदों के चारों वेदों में जो उपनिषद पार्ट है उसकी भी व्याख्या करके, चैनलिंग ऑफ थॉट करके, उत्तर मीमांसा, बाद की मीमांसा, बाद का। हाँ, तीसरा नाम मुझे याद आ गया, एक नाम है मीमांसा, एक नाम है पूर्व मीमांसा, और एक नाम है कर्मकांड। तो पूर्व मीमांसा के 3 नाम हुए, पूर्व मीमांसा, मीमांसा और कर्मकांड। उत्तर मीमांसा के 3 नाम हुए, उत्तर मीमांसा, वेदांत और उपनिषद। वेदों का अंत, वेदों के बाद का, लेटर लेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदास इज वेदांत। वेदांत के बाद ये हुई हमारी दर्शन, 6 दर्शन। दर्शनों के बाद
जैसा मैंने बताया 14वीं विद्या न्याय को अलग माना गया है। लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी, तर्कशास्त्र और शब्द विज्ञान, इसको अलग 14वीं विद्या माना गया। तो मैं इन विद्याओं की लिस्ट बता दूं दोबारा। 4 वेद, 6 वेदांग, 10, 11 इतिहास, 12 धर्मशास्त्र, 13 दर्शन और 14 न्याय। These are all 14 विद्याज known as। इसलिए माना जाता है कि भारतीय दर्शन में हर व्यक्ति को अपने गुरुकुलम इन सब में 14 विद्याएं सिखाई जाती थी। बाद में लोगों ने कहा कि नहीं 14 नहीं 18 विद्या हैं। देयर आर 18 विद्यास और 4 उपवेद माने गए हैं। 4 उपवेदास हैव बीन एडेड later on, and those 4 Vedas are Ayurved, Dhanayurved, Gandharva Ved, Sthapatya Ved. Ayurved refers to the treatment of people through herbs, herbal treatment of the diseases, herbs के द्वारा। धर्मशास्त्र धनुर्वेद, the science of archery, युद्ध वेद, धनुर्विद्या, धनुष चलाने की विद्या, धनुर्वेद। गंधर्व विद्या, द आर्ट ऑफ म्यूजिक एंड डांस। म्यूजिक के 3 पार्ट माने गए हैं, वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड डांस। ये कहलाया गंधर्व वेद। और स्थापत्य वेद, आर्किटेक्चर। और आर्किटेक्चर में जैसे मैंने बताया कि अपने समय की बहुत बड़ी विदुषी थी हमारी पट्ट महादेवी शांतला। ये हो गई 18 विद्याएं। अब हम बात करते हैं, समय कम है, मतलब मुझे तेज गति से आपको पढ़ाना है, बात करनी है थोड़ी सी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हम कई मायनों में दुनिया में अलग हैं, अनूठे हैं, अलग तरह से सोचने का हमारा सिस्टम रहता है। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग है द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। दोस्तों एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और नोबेल प्राइज भी उनके आगे छोटा माना जाता है। मैं रिपीट कर दूं साथियों, ऑडियो ऑफ एंड वीडियो ऑन फ्रेंड्स। बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है, वीडियो ऑन, ऑडियो ऑफ। भारतीय एक जो स्टीफन हॉकिंग नाम के एक सज्जन हुए हैं, 7-8 साल पहले उनकी मृत्यु हुई है, 7 साल पहले। स्टीफन हॉकिंग के आगे कहा जाता है कि नोबेल प्राइज उनके आगे छोटा था। स्टीफन हॉकिंग की एक पहली किताब थी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और एक लास्ट किताब थी द ग्रैंड डिजाइन। बीच में एक और भी किताब, मैंने 4-5 किताबें उनकी पढ़ी हैं, खुद पढ़ी है, बहुत शानदार किताब है। स्टीफन हॉकिंग ने एक बड़ा बढ़िया सवाल पूछा। स्टीफन हॉकिंग ने पहले और दूसरे चैप्टर में एक सवाल पूछा कि आज 2024 है, 2023 था, 2022 था, 2000 था, 1900 था, 1800 था, 1700 था, 500 था, 400 था, 300 था, 200 था, 100 था, 0 था। 0 से पहले क्या था? बिफोर क्राइस्ट। क्या उससे पहले क्या था? टाइम कब शुरू हुआ? When did the time begin? इसलिए और उन्होंने बड़े बोल्ड अक्षरों में एक सवाल उठा, Was there time before time? क्या समय से पहले समय था? यदि समय से पहले समय था तो टाइम शुरुआत नहीं हुआ, उससे पहले शुरू हुआ है। तो भैया कब शुरू हुआ है समय? इसका वो उत्तर नहीं दे पाया। भारतीय दर्शन में इसका उत्तर मिलता है, समय जब शुरू हुआ, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ हिरण्यगर्भ। एक विशाल चमकीला स्वर्ण रूप आकार का एक विशाल गोला, आग का गोला था, जो कि हमारी, मैंने कालांतर में पढ़ा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं हम लोगों ने बीएससी में पढ़ा था, दिल्ली में शिवाजी कॉलेज से मैंने बीएससी की थी, वहां मैंने पढ़ा था कि कियोसियन की किताब थी ओरिजिन ऑफ लाइफ की, जियोजेनी, कीमोजेनी, जियोजेनी एंड बायोजेनी। उसमें जो कॉन्सेप्ट थी किस तरह से आया, वो कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में हिरण्यगर्भ की कल्पना से मिलती गई है। और उसमें एक चीज और मानते हैं वो, द टाइम इज साइक्लिक, लीनियर नहीं है। स्टीफन हॉकिंग या क्रिश्चियन फिलोसफी ये मानती है कि टाइम लीनियर है। लीनियर मतलब चलता रहा है, चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, सीधी रेखा में चलता ही रहेगा, 2024, 25 और आगे तक बढ़ता रहेगा। इंडियन थॉट कहता है कि नो, द टाइम इज साइक्लिक। वो कहता है
कौन सा वो 4 वो मानेगा ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर वापस टाइम वापस घूमेगा, सर्किल पूरा करेगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल, इस तरह से टाइम चलता रहेगा और ये एक टाइम एक मनवंतर कहलाएगा। मनवंतर, खैर उसके हम शिफ्ट में नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ वर्ण 4 माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। मैं यहाँ अपना इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा हूं, डॉक्टर राधा कमोद मुखर्जी की किताब में से मैं मीनिंग दे रहा हूं। ब्राह्मण वो माना जाता था जो 6 काम करता है, कोई सा 1 या कोई सा 6, 6 के 6 करता है। ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड whosoever is giving or receiving education is a Brahmin. Every person in the world, जो भी हमारे BSNL में भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है या बैंक में भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, ये दुनिया में कहीं भी कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑल दोस ट्रेनर्स आर द ब्राह्मण्स बाय द कॉन्सेप्ट ब्राह्मण। क्षत्रिय वो है जो देश और समाज की रक्षा में लगे हुए हैं, who are involved in the security of the society and the country at large. इसमें आएंगे हमारी वायु सेना, थल सेना और जल सेना, पुलिस फोर्स, BSF, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, CRP, होम गार्ड। इतना ही नहीं, हमारी जो मल्टी, जिसमें हम मल्टी में रहते हैं सोसाइटी में, उस सोसाइटी के जितने भी गार्ड हैं, दे आर क्षत्रिय बाई प्रोफेशन, वो उनको क्षत्रिय माना जाएगा। एक और चीज बड़ा साफ मिलता है, ये बड़ा, मैं उस पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा, सिर्फ तर्क नहीं करूंगा, बड़ा क्लियर एग्जाम्पल, 50 एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इट वॉज नॉट बाई बर्थ, इट वॉज बाई प्रोफेशन आई अडॉप्ट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें वो देना चाहूंगा, राधा कुमुद मुखर्जी जी कहते हैं, अच्छा खैर मैं बता देता हूं, वैश्य क्या था, वॉज वैश्य, वैश्य वो है जो वस्तुओं का उत्पादन और विनिमय करे, वन हु प्रोड्यूसेस द गुड्स, उनका मार्केट करता है, उनका मार्केट में लाना ले जाना करता है, विपणन व्यापार करता है, खरीदता है, बेचता है, प्रोवाइड करता है। सो ऑल द कंपनीज हु डू बिजनेस, ऑल कंपनीज, ऑल फार्मर्स, ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट, दे आर द वैश्यास। शूद्र कौन है, जो और बाकी बची हुई सेवाएं करते हैं, दे आर द शूद्रास। एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग, राधा कुमुद मुखर्जी ने एग्जाम्पल देके कहा है, एक व्यक्ति पढ़ा के मेडिसिन यदि पढ़ी है उसने, और मेडिसिन पढ़ के वो पढ़ाने लगता है मेडिसिन, ही इज ए ब्राह्मण। बट अशोक जी कृपया ऑडियो ऑफ करें, अब वो नहीं कर पाएंगे, वो सुन नहीं रहे, वो यहाँ है, नहीं दिक्कत ये है कि कहीं और सोच में लगे हुए। खैर, एक व्यक्ति जो मेडिसिन पढ़ के पढ़ाने का काम करता है, ही इज ए ब्राह्मण। बट इफ ही प्रैक्टिसेस मेडिसिन, ही इज ए शूद्रा। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, जितने भी प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, उस सर्विस प्रोवाइडर आर द शूद्रास। अशोक जी कृपया ऑडियो ऑफ करें, यू आर डिस्टर्बिंग अस सर। नहीं सुन पाएंगे, वो बड़ी दिक्कत है। अशोक तलबदार जी, तहसीलदार, तहसीलदार, अच्छा चलिए जी, आप ऑफ कर दीजिए, उनका आप एडमिट चैनल का ऑफ कर दीजिए सर। हमारे यहाँ 4 एम लाइफ के माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। धर्म जो है, धर्म का जो मीनिंग दिया गया है, और आज भी मैं उस मीनिंग को लेता हूं, और उन्होंने जो राधा कुमुद मुखर्जी साहब जो देते हैं, धारयते इति धर्म है। मैं जो भी कपड़े धारण करता हूं, जो विचार धारण करता हूं, आचार धारण करता हूं, व्यवहार धारण करता हूं, जो मेरी बेसिक नेचर है, वट एवर आई ओ, whatever I take as mine, it is my personality, my attitude, my thinking, my view of life, that is my dharma, वो मेरा धर्म है। अर्थ, अर्थ में सारा मटेरियल जितना भी गुड्स हैं, सारी मटेरियल कंफर्ट है घर में,
हजारों है, पानी की बोतल है, लिखने का पेन है, किताब है, कॉपी है, माउस है, ये एक ये पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव, वॉट एवर इन द वर्ल्ड इज देयर, द मटेरियल वेलफेयर, द मटेरियल गुड्स विच आर इन द वर्ल्ड, दे विल कम अंडर अर्थो। काम, डिजायर्स, डिजायर्स कितनी मानी गई है हमारे यहाँ? 11 प्रकार की डिजायर मानी गई है। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन। ज्ञानेंद्रिय हम और आप जानते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। कर्मेंद्रिय 5 मानी गई हैं, वाक, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ। बोलना, वाक स्पीच, हस्त हाथ, पाद पैर, वाक हस्त पाद, पायु उपस्थ द जेनिटल ऑर्गन्स एंड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इन सबको प्लस एक मन, इन 11 जो डिजायर्स हैं इनको फुलफिल करना, धार्मिक धर्म का नियंत्रण में रहते हुए। कुछ लोग भारत में आरोप लगाते हैं कि इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिस्टिक और मटेरियल वेलफेयर को ना छोड़ देते हैं वो। उसका उत्तर है कि अर्थ और काम विशेष रूप से मटेरियल वेलफेयर से जुड़े हुए हैं। मोक्ष के बारे में ये तो एक व्यू तो ये है कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। श्री अरविंदो ने इस बारे में बड़ा साफ कहा कि नो, एजुकेशन की वो परिभाषा देते हैं, इसी जमीन में, इन्हीं हालातों में जीते जी हैप्पीनेस की एक्सट्रीम को अटेन करना ही मोक्ष प्राप्त करना है। अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन ऑन दिस अर्थ एंड इन दिस अर्थ इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का लक्ष्य इसी जमीन में, इन्हीं जमीनी हालातों में परम सुख की प्राप्ति करना ही मोक्ष कहलाएगा। हमारे यहाँ आश्रम भी 4 माने गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ब्रह्मचर्य में 25 साल, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। ब्रह्मचर्य में फिर मैंने कहा कि 11, बड़ा बढ़िया इनको माना है कि 11 इंद्रियों को उनके भोजन पर नियंत्रण करना सीखना ब्रह्मचर्य। गृहस्थ में अपने परिवार का धर्मानुसार पालन करना, लाइफ जीना, नॉर्मल लाइफ जीना धर्मानुसार। वानप्रस्थ 50 के बाद परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए कार्य करना। और संन्यास, समाज के लिए भी ना कार्य करके एडवांस लेवल का थिंकिंग, रिसर्च करना, तप करना। इसमें एक और चीज है, हर आदमी की छूट थी कि तू चॉइस है तेरी, तू वानप्रस्थ कर ना कर, तू संन्यास कर ना कर, तेरी चॉइस है। यू मे गो फॉर संन्यास, यू मे नॉट गो फॉर संन्यास। एक और बड़ी दुनिया की बड़ी खास बात है रिलीजन के बारे में मैं कहूं, दुनिया का भारत अकेला ऐसा देश है जिसने 4 धर्मों का उदय हुआ और 5वें धर्म का सर्वाधिक विकास भारत में हुआ। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म का विकास, उन्नति सब कुछ भारत में हुई है। 5वां धर्म, इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म, उसका उदय भारत में नहीं हुआ, लेकिन उसके सबसे ज्यादा, सबसे गहराई से, सबसे ज्यादा एडवांस लेवल का रिसर्च, उन्नयन, शोध, डेवलपमेंट, ग्रोथ भारत में हुई है। इसी के साथ पर्शियंस के बारे में जो अभी लेटेस्ट थ्योरी चल रही है, संजीव सांजाल की किताब में द लैंड ऑफ 7 रिवर्स में उन्होंने वो डिस्कस करते हैं। वो बताते हैं कि पारसी भी ओरिजिनली इंडिया से थे, फिर ईरान चले गए, ईरान से लौटकर कुछ आगे यहाँ आ गए थे। तो इस तरह से दुनिया के सबसे ज्यादा धर्मों का उदय और विकास भारत में हुआ। 6 नई फिलोसफी जिसको कहा जाता है हेटेरोडॉक्स फिलोसफीज, इसमें 4 बौद्ध धर्म की ली गई हैं और 2 जैन धर्म की ली गई हैं। ये 4 बौद्ध धर्म में क्या था, पहले एक मेन धर्म था, फिर हीनयान और महायान में बदल गया, फिर हीनयान महायान 4 धर्मों में बदल गया, 4 उसमें बदल गया पार्ट्स में, दर्शनों में, सौतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक और योगाचार। जैन धर्म के 2 हिस्से हो गए थे, श्वेतांबर दर्शन और दिगंबर दर्शन। और 9th जो यूजीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग मानते हैं, हालांकि और भी फिलोसफीज हैं, इस्लाम फिलोसफी, चारवाक फिलोसफी, ये सब भी हेटेरोडॉक्स फिलोसफीज के वो हिस्से माने गए हैं। जहां तक इसकी बात है
मैं उसमें बात करूं कि जैसे मैंने राधा कुमुद मुखर्जी के नाम का काम दिया, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स किताब एक संजीव सान्याल जी ने लिखी है, और उन्होंने कहा है कि भारत एक दुनिया का इतना शानदार है। एक्चुअली हमने नाश किया है अपने आप को, बहुत अपना भूल भाल गए पूरा एक्चुअली इंडियन नॉलेज सिस्टम को बिल्कुल। इसीलिए मैं एक आपसे बार बार एक अपील करूंगा, एक यहाँ और अपील करूंगा, 2020 का जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, ये मुश्किल से 100 पेज का डॉक्यूमेंट है। भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक या तो कोठारी कमीशन एक बहुत बड़ा पैराडिग्मेटिक चेंज लेकर आया था, या 2020 का डॉक्यूमेंट लेकर आया है। आपका अपना सोच, अपनी पर्सनैलिटी का सोच, एक टीचर का सोच, आपका अपने सब्जेक्ट के प्रति सोच, आपका अपने संस्थान के प्रति सोच, आपका अपने विश्वविद्यालय के प्रति सोच, आपका छात्रों के प्रति सोच, आपका अध्यापकों के प्रति सोच, आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम के प्रति सोच बदल जाएगा यदि आप एक ये किताब पढ़ लेंगे। इट्स अ वंडरफुल क्लासिक डॉक्यूमेंट, वी शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। तो इस डॉक्यूमेंट में जो बात की गई है, और इसमें यही बात की गई कि मूल रूप से कि मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉटेज भी चाहिए। इन्होंने एल्विन टॉफलर ने थर्ड वेव नाम की किताब लिखी है, और एक फ्यूचर शॉक की किताब लिखी है। हमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चाहिए, और गुरुकुल सिस्टम भी चाहिए। इसलिए हमें दोनों का मेल चाहिए, और इसीलिए इंडियन नॉलेज सिस्टम की हम और आप बात कर रहे हैं। सारी दुनिया में एक रेनेसा पीरियड जो कह सकते हैं, पुनरुत्थान, पुनर्जागरण, जो मॉडर्न साइंस बताते हैं कि 15वीं सेंचुरी के बाद आया था। एनईपी 2020 वो रेनेसा की बात करती है कि पुनर्जागरण करना चाहिए। हम अपने इतिहास, हम अपने लोग, हम अपने जीवन के बारे में जाने। मैं 2 किताबों का और रेफरेंस देना चाहूंगा। गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड, परेशान आदमी के लिए गाइड, E.F. शूमाकर, इनकी एक बहुत पहली किताब है, वो ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, दुनिया की बहुत शानदार किताब रही है, लाखों करोड़ों प्रतियां बिकती हैं, करोड़ों बिकी है इसकी प्रतियां। फिर उनकी दूसरी किताब रही गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड। इसमें उन्होंने मानव का उदय, मानव का विकास, स्पिरिचुअलिटी, ग्रोथ, इनोवेशन, इन सब की बात की गई है। एक और किताब है, उन सज्जन से मेरी 2 बार फोन पर बात की, 2-3 बार फोन पर बात हुई है, अभी 80-85 साल की उम्र के हैं, मिस्टर ब्रायन वेस, फ्लोरिडा में रहते हैं। मुझे मतलब मैं पूर्ण विनयशीलता के साथ कहूंगा कि मुझे 12 बार अमेरिका जाने का मौका मिला, तो 2 बार मेरी इनसे बात हुई। मैं इनसे मिलना चाहता था, इनका फिर फोन आया कि वशिष्ठ जी मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपसे मिलने चाहूंगा, मुझे बाहर जाना है अभी। एल्विन, इन्होंने किताब लिखी है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, छोटी सी किताब है। वो क्रिश्चियन है, कहते हैं हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझे मजबूर होकर करना पड़ा। एक बड़ी लंबी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि हमारी नई पीढ़ी में पढ़ने ना पढ़ने का एक नया तरीका जो पढ़ा है, तो मैं कहा करता हूं कि यदि आपका दिमाग खराब हो जाए, कभी कभी आपके दिमाग में दर्द हो जाए, तो आप किताब पढ़िएगा। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, क्लासिक बुक, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, ये किताबें हैं। मैं माफी चाहता हूं, मैंने समय ले लिया है ज्यादा। भारतीय दर्शन, भारतीय सोच, भारतीय मानसिकता, हाँ 2-3 चीजें और रही, मैं और बता दूं आपको। इंडियन फिलोसफी एक अलग क्षेत्र है, अलग इसका एरिया है, अलग इसके विचार है, अलग सोच है, अलग दृष्टि है। इंडियन साइकोलॉजी, मैंने एमए फिलोसफी की थी, उसमें 2 पेपर्स हमें इंडियन साइकोलॉजी पे पढ़ने होते थे। इंडियन हिस्ट्री में जैसे मैंने बताया कि बड़ा प्राचीन और गौरवशाली है। इंडियन इकोनॉमिक्स, विष्णुगुप्त का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इंडियन पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, वृक्षायुर्वेद, हम लोगों ने बॉटनी की किताब लिखी है, पौधों के गुणों के बारे में किताब लिखी है। मेटलर्जी के बारे में पीसी रे साहब ने किताब लिखी है। एक बंगाल कॉमिक केमिकल्स, प्रफुल्ल चंद्र रे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में होलकर कॉलेज में, इसमें होलकर नहीं, कौन सा कॉलेज है, बहुत बड़ा कलकत्ता का कॉलेज, वहां पढ़ाते थे प्रोफेसर पीसी रे साहब। उनके बारे में बड़ा प्रसिद्ध था कि ये खाट रख रखी थी इन्होंने लैब में, कोई भी विदेशी भी अतिथि मिलने आता था, लैब से खाट बाहर निकालते थे और बैठ के उससे बात करने लग जाते थे। अपना कुर्ता भी निकाला और सिंक में लेके धो लिया वहां उसमें। हमारे यहाँ विमान शास्त्र की बात, विमान शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर पूना यूनिवर्सिटी में एडवांस लेवल का काम चल रहा है। विमान शास्त्र में हम लोगों ने ऐसे मेटल्स डेवलप कर लिए थे जो लाइट भी थे, वजन में भी कम थे, और साथ ही साथ नॉन मैग्नेटिक भी थे। सारी दुनिया में आज भी जो एक बात चलती है सारी सैटेलाइट और इन सब में ले जाने की, लाइट वेट नॉन मैग्नेटिक मेटल्स की बात की जाती है।
कालिदास के मेघदूत की बात करूंगा मैं यहाँ जरूर। कालिदास ने मेघदूत में रचना की है कि बादलों वहां जाना वहां जाना। जयंत विष्णु नार्लिकर प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स हैं, बेंगलोर में आज रहते हैं, 90 साल से ऊपर के हो गए हैं। अब वो घूमने फिरने अब कहीं नहीं जाते हैं। वो इंदौर में लेक्चर देने आए थे, मैंने उनका लेक्चर प्रत्यक्ष सुना था। उनके कहने पर एक फिजिक्स के प्रोफेसर पूना से आए थे, और वो एयरफोर्स में थे पहले, फिर बाद में फिजिक्स के प्रोफेसर बने। उन्होंने बताया कि कालिदास ने जिन जगहों का वर्णन किया है, आज भी आदमी वहां पैदल नहीं जा सकता, केवल वहां वायुयान से ही जाया जा सकता है। इसलिए वो ये कहते हैं कि वो लॉजिकली एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि कालिदास के समय में हमारे यहाँ वायुयान थे। खैर, हम मॉडर्न उसमें बात करें, सीवी रमन हैं, एस.एन. बोस हैं, मेघनाथ साहा हैं, होमी जहांगीर भाभा हैं, एस. चंद्रशेखर हैं, विक्रम साराभाई हैं, जी.एन. रामचंद्रन हैं, जयंत विष्णु नार्लिकर हैं, हरीश चंद्रा जी हैं, हरगोविंद खुराना केमिस्ट्री में जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, इनका भतीजा मेरे साथ पढ़ता था दिल्ली में हायर सेकेंडरी में। पीसी रे साहब हैं, एस.एन. बोस साहब हैं, CNR राव साहब जिंदा है अभी, सी शेषाद्री केमिस्ट्री में फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी थे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वी पुरी जिनकी बाई कार्पेलरी थ्योरी में MSc बॉटनी में पढ़ते थे, सारी दुनिया में इनकी कार्पेलरी थ्योरी पढ़ाई जाती है। जगदीश चंद्र वे बोस, पी महेश्वरी जिनकी हम एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द एंजियोस्पर्म सारी दुनिया में एलन एंड अनविल वालों ने सबसे पहले दुनिया की किसी इंडियन की किताब इन्होंने छापी थी। पुराने चिंतकों में बात करें, फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट में बात करें, भास्कर हैं, सुश्रुत हैं, चरक हैं, हलायुध हैं, नागार्जुन हैं, कपिल हैं, वराह मेहर हैं, कणाद हैं, बाणभट्ट हैं, कल्हण की राजतरंगिणी है, शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बात की जा सकती है। मॉडर्न इंजीनियर्स में मुझे एक नाम और याद आ गया, विश्वेश्वरैया जी इंजीनियर हैं। सारे ब्रिटेन के लोग भी आज भी लोग मानते हैं कि इतना बड़ा इंजीनियर आया, ये एक बड़ी अनूठी बात है। मैं यहाँ जानकर रुक रहा हूँ, 10 मिनट बचे हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चंस एज मेनी एज यू कैन। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने मुझे सहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं। बोले साहब। Participants, any questions you can ask. कोई सवाल, कोई जवाब, कोई प्रश्न, कोई संदेह, कोई ऑब्जर्वेशन? रफीकुल हुसैन ने हाथ उठाया है। रफीकुल हुसैन, हारिस। Good evening, sir. I'm Very good Haris evening, from sir. Kerala. Sir, do you have any question? Yes, Yes, please. sir. Actually, I'm very happy to listen from you. Like a saint, you are talking from your mind instead of any paper. I thought the actual person as an Indian knowledge system in the olden days. Whenever I see you, it is very old man having that much experience. But I am wonder about you because in this age also you have this much memory. That is बादाम Indian. खाइए। Okay, sir. I will come to the point. Sir, Okay, please. actually, in our, you told that Indian Gurukula system of Yes. education institutions, there a guru and shishyas are there. You told that around 1 to 12 or 20 to 24 years, 10,000 of people, they are staying there, boarding there, food also there. That is like a university. That is a function like a university. We know as a university, we have registrar, proctor, provost, and many people are there. And similarly, there are so many funds from UGC and everything. How this Gurukula system functions in that days? Interesting. That, Interesting. Let me tell you one interesting fact. It might be new to you. Do you know who are managing these Gurukuls? The wives of the teachers. They were the chief managers. They were the finance officers. They were managing the estate. They were managing the agriculture. They were managing the cattle. They were managing the relationships with the kings. They were managing relationship with the society. They used to decide the timetable of the Gurukul. The chief managers, if you call registrars of for that matter, registrar शब्द नहीं है उनके लिए उन्होंने. तो the wives of the teachers, Guru Ma,
गुरु माएं ये सारी व्यवस्थाएं चलाती थी, और इकोनॉमिक्स की बात हो, हिस्ट्री की बात हो, पॉलिटिकल साइंस की बात हो, मैनेजमेंट की बात हो, टाइम टेबल बनाने की बात हो, दीज वर द लेडीज हु वर मैनेजिंग दीज गुरुकुल्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और 10,000 इज अ वेरी वेरी बिग नंबर, आई नो। हमारी मतलब इंडिया में देर आर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज जहां 10,000 स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पर डेली आकर पढ़ते हैं, बट दे वर मैनेजिंग इट ब्यूटीफुली, दैट इज ट्रू। हरीश चुंडकंडन जी, Yeah, Haris, Haris. Yes, yes, yes. That is my sir, please. family name. Okay. Sadaf ma'am, do you want to ask anything? Sadaf ma'am. हाँ यस सर। Thank you, sir. बोलिए मैडम प्लीज। हाँ गुड सादप। इवनिंग सर। मैडम हाँ सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेजेंटेशन के लिए। और सर मैं लॉ पढ़ाती हूँ यहाँ सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता में। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि हम लोगों को क्या होता है जब हम लोग कोई भी रिसर्च करते हैं कोई भी लॉ के कंसेप्ट में, तो हमेशा हम पर्सनल लॉज भी देखते हैं। जी। तो आपसे मेरा मतलब पूछना ये है कि आप क्या लिटरेचर हमको सजेस्ट करते हैं जहां हम लॉ से कनेक्ट, मतलब लॉ के प्रोविजंस जहां पर हो, हिंदू लिटरेचर जहां हमको लॉ का प्रोविजंस मिल जाए। ओके, वंडरफुल। देखिए सबसे पहले तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़िए, विधि शास्त्र के लिए सबसे पहली किताब। दूसरा, यदि आप फिलोसफी ऑफ लॉ पढ़ें, लॉ में कुछ पेपर्स होते हैं, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने एलएलबी ज्वाइन किया था, एग्जाम नहीं दिया था। देयर आर सर्टेन थ्योरी ऑफ लॉ। थ्योरी ऑफ लॉ में हिंदू लॉ को यदि आप पढ़ेंगे, हिंदू लॉ पर लॉ में किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं, यू विल गेट द रेफरेंसेस। और इसका जो बड़ा फिर यदि हम फिर कहें कि कौटिल्य के अलावा, चाणक्य के अलावा, यदि मैंने इसको बताया है, यदि आप हिस्ट्री एंड कल्चर यदि इंडिया का पढ़े, उसमें आपको लॉ का मिल जाएगा। इसमें लॉ का इसमें भी रेफरेंस है। राधा कुमुद मुखर्जी का एंशिएंट इंडियन एजुकेशन में विधि शास्त्र पर पूरा चैप्टर है, इसको आप पढ़िए, यू विल गेट टू नो ए लॉट। हाँ जी, नेक्स्ट। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। हरीश जी। प्रणाम सर। डॉक्टर प्रतिमा जी बोलिए। सदाफ जी हो गया, सदाफ जी ने पूछ लिया। अच्छा ठीक, यस प्रतिमा जी, मैडम बोले। बहुत अच्छा आपका ये आज का ये प्रस्तुतिकरण था, और इतना बेहतरीन रहता है में जाकर हम लोग के लिए आज के समय में संभव नहीं है कि हम उतने सारे वेदों पुराणों के बारे में जाने और डिलीवर करें। मैं हिंदी की एक प्राध्यापिका हूँ पश्चिम बंगाल से। सर मेरा ये, हम लोग अगर आज के समय में पुराण जो है और इतिहास, इन दोनों में से हम किसकी ओर जाएं सर, किस सोच को हम विकसित करें? बहुत बढ़िया सवाल है। मैं केवल एक कहूंगा, निष्पक्ष भाव से हर चीज पढ़िए, हर चीज पढ़िए। इजराइल को भी पूरे ध्यान से पढ़िए, फिलिस्तीन को भी पूरे ध्यान से पढ़िए। नॉलेज में एक टीचर को सदा सारी उम्र न्यूट्रल होना चाहिए। मैंने 38 साल तक दूसरों के बच्चे बिगाड़े हैं। मेरे स्टूडेंट आज तक नहीं जान पाए कि मेरा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है। मैं वोट देने जाता हूं, नेचुरली किसी न किसी पार्टी या व्यक्ति को वोट देता हूँ, लेकिन मेरे छात्र आज तक नहीं जान पाए मैं 30 मार का नहीं हूं, मैं खुदा का भाई नहीं हूं। एक अध्यापक का सबसे बड़ा निष्पक्ष होकर सारी चीजों को सामने रखे। पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, आपको आनंद आएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि पागलपन का दौर है, पागलपन का हिस्सा बनिए। मैं तो पागल मानता हूं अपने आप को, पूरे पागल। इन्होंने ये जो ये जबलपुर के थे, ओशो की एक स्टूडेंट की पीएचडी थीसिस दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, पढ़ने आई थी, मैं उसका एग्जामिनेशन करने गया था, भाई वाले ने, उसमें बड़ा साफ कहा गया है कि जो बुद्धिमान या चिंतक या क्रिएटिव लोग हैं, वो पागलपन का लेवल रहता है उनका। तो आप अपना पागलपन का लेवल बढ़ाइए, मेरी शुभकामनाएं। सर मुक्तिबोध ने पागल को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया है हिंदी में। दैट इज ट्रू। यस सर, मुक्तिबोध दैट इज ट्रू। बिल्कुल। बड़ी इसी में एक चीज और जोड़े मैडम, यहाँ पर पागल दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स जो लास्ट स्टेज पर जो पागलपन का दौर सा जो आता है, उसमें क्रिएटिविटी में कोई बहुत अंतर नहीं है। मैं फिर वही कहूंगा कि मैं 30 मार का नहीं हूँ, खुदा का भाई नहीं हूँ। मेरे इस कमरे में 5000 किताबें हैं और ज्यादातर मैंने पढ़ रखी है, पागलपन की हद तक पढ़ रखी है।
और मेरी तरह आप पागल बनिए, दुख पाइए सारी उम्र। मेरी शुभकामनाएं। बहुत प्रशंसात्मक सर, आप हमारे Thank लिए you. प्रेरणा के स्रोत हैं। और Thank you, thank you, बुद्ध की एक बहुत फेमस कविता है, ब्रह्म राक्षस का शेष। हाँ मैंने पढ़ी है मैडम, कविता नहीं कहानी है। कहानी मैं भी इसको है, सुनाया करता कविता हूँ, भी है। मेरी प्रिय कहानी है, बहुत कहानी प्रिय। भी है। मुक्ति बोध में, हाँ गजानन माधव मुक्ति बोध की, बहुत हाँ। शानदार। मैं इसको हाँ। हर जगह सुनाया करता हूँ। इट्स ए वंडरफुल क्लासिक स्टोरी, ईच टीचर शुड रीड इट। इट्स ए क्लासिक। सर हमें आप ब्रह्म राक्षस तो बना रहे हैं, लेकिन वैसा शिष्य हमें कहाँ मिलेगा? ये मेरी शुभकामनाएं। कोई और सर? नमस्कार डॉक्टर सर, आफ्ताब साहब। मेरा एक अच्छा, डॉक्टर प्रश्न गरिमा है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गरिमा जी सर, बोले मैडम। मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि जब आपने दास प्रथा की गरिमा बात जी करी अपने थी, बारे में बता दीजिए जरा। सर मैं अभी GH राय सोनी इंटरनेशनल स्किल टेक यूनिवर्सिटी पूना से हूँ। और ओह, वैसे wonderful. मेरा नेटिव प्लेस जो है वो जबलपुर है, और मैंने रानी Okay. दुर्गावती विश्वविद्यालय से अपना PhD और अपनी सारी रानी पढ़ाई दुर्गावती, वहीं से जी। करी है। और ये बहुत ही इतना अच्छा अनुभव मुझे हुआ है आपके वक्तव्य से। बहुत सारे चीजों का पता चला है, वेदों के बारे में, सभी चीजों के बारे में। सर मेरा एक प्रश्न है कि त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र जो थे, उनकी एक कथा थी, उसमें कुछ थोड़ा ऐसे दास प्रथा के बारे में है, उस पे हमें कुछ आप बताएंगे क्या? क्योंकि एक्चुअली उसमें- नंबर 1 वो त्रेता युग नहीं था मैडम, वो सतयुग था। नंबर 1 तो ये चेंज कर लें आप। जी 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 हाँ, सर, जी सर। और आप जी ये सर। कहते हैं एक्चुअली इसमें फिर ये एक बड़ा बढ़िया चाणक्य के कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आप पढ़ेंगे जी तो सर। उसमें हर एक को दास नहीं बनाया जाता था। एक्चुअली दास शब्द को भी जी ये जी जान ले, दास का मतलब वो नहीं था जो वेस्टर्न कल्चर में लिया जाता है, मैं ईश्वर का दास हूँ। सो ए वर्कर, जी दी वर्कर्स इन द सोसाइटी, उनको दास शब्द इस्तेमाल किया जाता था। दास था, भृत्य था, एक और भी कई शब्द थे इस्तेमाल किए जाते थे, बट दे वर नॉट द कहना चाहिए स्लेव्स इन द वेस्टर्न सेंस, उस सेंस में नहीं थे वो। अच्छा, इसमें एक और शब्द आता है, इससे और जोड़ें आप, एक चांडाल शब्द आता था। चांडाल शब्द की व्युत्पत्ति में जाएं या इसके व्याकरण में जाएं तो जो व्यक्ति सोशल लॉज को तोड़ता था उसको बाकायदा कोर्ट ऑफ लॉ डिफाइन करता था कि दैट यू विल बी ए चांडाल। और फिर इसमें यही है, कोई ब्राह्मण गंदा काम करेगा, महागंदा करेगा, तो उसको भी चांडाल कह सकते हैं हम, और बाकायदा क्लासिफाई कर देंगे। बड़ा क्लियर था लॉ। ओके सर, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, मैं बख्तियार, अलीगढ़ मुस्लिम बख्तियार यूनिवर्सिटी साहब से। बोले, खान साहब प्लीज। तो मेरे लिए तो बड़ा कमाल का सेशन रहा आपका, बहुत ही चीजें समझने को मिली और बहुत सारे जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हुए। एक चीज जो है मुझे बड़ा परेशान करती है, क्योंकि ये सर। जो आपका 4 वर्ण वाली जो चीज है, ये कई जी। बार सुनते हैं, कई बार सोशल मीडिया पे भी आती है, लोग बहुत बात करते हैं। आपने आज उसको भी क्लेरिफाई किया कि वो काम से था, वो कोई जन्म से नहीं था, बड़ी अच्छी बात है। ये जो बिगाड़ इसमें आया है, जो शूद्र को एकदम ऐसा समझ लिया गया है कि ये तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही छोटे और नीचे लोग हैं, ये कहाँ से हुआ है? इसके अंदर जो इतना अच्छा एक सिस्टम बना हुआ था वो कहाँ से बिगड़ा है? और सर वो बहुत सही नहीं आसान है, हो ये तो आप ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। ब्रिटिश पीरियड में ये सारा स्टार्ट हुआ है। इवन मुस्लिम पीरियड तक इतना लोग गड़बड़ नहीं किया गया, ब्रिटिश पीरियड में सारा चेंजेस लाए गए हैं। एक्चुअली हमारी हिस्ट्री को रिटॉर्ट किया गया, बदला गया। आप गूगल में पढ़ेंगे, दिस वाज स्टार्टेड इन द ब्रिटिश पीरियड। 1700 के आसपास ये चीजें अपने पीक पर थी। 1500 से हमारे यहाँ इन्वेजन चालू हो गया था और 1600 तक हम लोग काफी हालत में थे। 1700 में ये चीजें अपने पीक पर थी। विकृत करना भारतीय इतिहास को, भारतीय ग्रंथों को, भारतीय चिंतन को। और इसका राधा कुमुद मुखर्जी की किताब में बार बार फिर मैं वही कही, वॉज ए ग्रेट नॉलेजेबल पर्सन। उनके बड़े भाई वाइस चांसलर भी रहे लखनऊ यूनिवर्सिटी के, बड़े शांत और अपनी तरह के पढ़ने लिखने वाले इंसान थे राधा कुमुद मुखर्जी साहब। उनकी किताब में बहुत डिटेल में इन चीजों को बताया गया है, आप पढ़िएगा, आपको मजा आएगा।
माय बेस्ट विशेस, गुड सर लक। कहीं कहीं तो मनुस्मृति को बताया जाता है सर कि मनुस्मृति में मैडम सूत्रों और मनुस्मृति स्त्रियों में भी फिर वही बात है, झगड़ा है, बहुत झगड़ा है, शब्दों का, व्याकरण का, शब्दों के उसका हेर फेर बहुत किया गया है, इसीलिए बड़ा झगड़ा है। एक और चीज है, मनु एक नहीं है, मनु 50 है, एक पद था, ये एक बड़ा झगड़े का सवाल है। विष्णु एक नहीं थे, अनेक थे। इंद्र एक नहीं था, अनेक थे। शिव एक नहीं था, अनेक थे। दीज वर द रैंक्स। रांगे राघव की आप एक 2 वॉल्यूम की किताब है, महायात्रा गाथा और रैन और चंद्रा। महायात्रा गाथा के 2 वॉल्यूम है, अंधेरा रास्ता और रैन और चंद्रा। उसमें ये सारी चीजें पूरी डिटेल में दी हुई है। हिस्ट्री है, माइथोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, कल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये सारा मिल जाता है उसमें रांगे राघव की किताब में। उन चीजों में यहाँ डिटेल में प्रेस पर प्रकाश डाला गया है। रांगे राघव की किताब पढ़ें आप, मजा आएगा। अभी तक तो अप्राप्य थी, अभी पिछले 2 साल पहले वो प्रिंट होकर 4 वॉल्यूम आ गए हैं। पहले 2 वॉल्यूम में थी, अब 4 वॉल्यूम में। इट्स ए वर्ल्ड क्लासिक अगेन। वोल्गा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन की किताब भी उतनी बढ़िया, शानदार है। हाँ उसको तो मैं पढ़ाती हूँ सर, वोल्गा से गंगा। हाँ, उसमें वोल्गा तो से- उन्होंने बहुत विरोध किया है सर। देखिए इस मजे की बात कास्ट यह है, को उन्होंने बहुत विरोध किया है और उन्होंने मैडम एक कहा है चीज कि जान हिंदू ले, धर्म राहुल सांकृत्यायन जी बहुत एक टिपिकल मार्क्सिस्ट टाइप के थे। और ये क्या नाम है, ये अपने महायात्रा गाथा वाला भी थोड़ा मार्क्सियन आउटलुक था। इस सब के बावजूद भी किताबों में जो तथ्यात्मक जानकारी दी गई है वो बहुत शानदार है, इसके बावजूद भी। हाँ जी, मेरे ख्याल से हम लोग आफ्ताब जी आज्ञा मैम दे, आपने रेज हैंड किया है। बढ़िया बढ़िया बातें कर सकते हैं आप। जी सर, थैंक यू वेरी मच।